امیر البحر پاشا کی کیا صورتحال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ وہ ہماری بات ضرور مانے گا۔ انہیں دی گئی مہلت کل ختم ہو رہی ہے ملکہ، آپ کوئی شک مت رکھیے۔ یہ نیچر والے حادثے میں میری معصومیت کے متعلق اور علی آغا کی سازش کے متعلق وہ خود بتائیں گے آقا کو۔ ہمیں ہر چیز کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ خیر الدین پاشا اتنا ترنے والا بھی نہیں، اللہ جانے ان کے ذہن میں اس وقت کیا چل رہا ہوگا۔ وہ اپنی دختر سے محبت کرتے ہیں، اس کی زندگی کو خطرے میں ڈالیں گے میں ایسا نہیں سمجھتا۔ آغا کو سمجھا دیا تھا نا تم نے، اس خاتون کو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچے۔ مجھے اجازت دیجیے، اب جانا ہے ملکہ، سفر پر روانہ ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ مہرمہ سلطان کو بھی اب تک الوداع نہیں کہہ سکا۔ تمہارے راستے آسان ہو رستم پاشا، تدبیر سے کام لینا مت چھوڑنا، میں نہیں چاہتی کہ تم پر کوئی مصیبت آئے۔ رستم پاشا کی غیر موجودگی میں ہمیں محتاط رہنا ہوگا، آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی۔ کل کا دن اہم ہے، دیکھتے ہیں امیر البحر پاشا کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ صلاح کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جنگ۔ دیکھتے ہیں ملکہ۔ وہ نازنین نامی خاتون کی نگرانی کر رہے ہو نا تم سنبل؟ جی ہاں ملکہ۔ سنبل؟ جی ملکہ۔ کیا ہو گیا؟ تم آخر گمسم کیوں ہو؟ حرم کی ذمہ داریاں ہیں ملکہ، اور کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے کیا معلوم، آخر کافی دنوں سے تمہاری حالت عجیب سی ہے، کوئی پریشانی ہے کیا؟ بتاؤ۔ اتنے حادثوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہوں، وہ بالکل تھمنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ آخر کب تک چلے گا یہ سب ایسے؟ تم شکایت کر رہے ہو کیا؟ ہرگز نہیں ملکہ، اپنی حد سے تجاوز کر کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہم سب کو اعتدال سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ قسم سے ایک کشتی پر سوار ہم قیامت کی طرف جا رہے ہیں، آقا کی تلوار بھی ہمارے سر پہ ہر وقت لہرا رہی ہے، یا تو ان لوگوں کا سر قلم ہوگا یا پھر ہمارا۔ رب سے دعا مانگتی ہوں کہ وہ تلوار آقا کے ہاتھوں میں رہے ہمیشہ۔ اگر وہ مصطفیٰ کے ہاتھ میں چلی گئی تو کیا ہوگا یہ جانتے ہو؟ وہ ایک ایک کے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔ اللہ بچائے۔ مجھے پرانے محل بھیج دیا جائے گا، نہ ہی میں ملکہ رہوں گی اور نہ ہی یہ طاقت۔ اس لیے صبر کرو، اس تلوار کو ہمارے سر پر لہرانے دو۔ اگر مر بھی گئی تو ایک ملکہ کی طرح مروں گی۔ سلیم کی جانب سے اچھی خبریں موصول ہو رہی ہیں سلیمان۔ منیسا کی عوام نے نہایت پرتپاک استقبال کیا ہے اس کا۔ میرا پسر خود کو جانشین ثابت کر کے دکھائے گا منیسا میں، یہ ظاہر ہے۔ انشاءاللہ۔ بیازت بھی ایسا ہی ہے، کوتھایا میں سب اس کی خدمات کے معترف ہیں، سب اس کی تعریف کرتے ہیں وہاں پر۔ میرا پسر بالکل آپ کی طرح ہے، جنگجو ہے۔ شہزادے مصطفیٰ کی کوئی خبر نہیں ہے کیا؟ میرے آقا امیر البحر خضر خیر الدین پاشا تشریف لائے ہیں۔ آنے دو۔ آقا، ملکہ، خوش آمدید امیر البحر پاشا۔ پاشا؟ آقا اجازت دیجیے، میں کمرے میں جانا چاہوں گی۔ اگر آپ ٹھہرنا چاہیں تو ٹھہر جائیں ملکہ، کیونکہ میں آپ کو بھی الوداع کہنے آیا ہوں۔ کیسا الوداع امیر البحر پاشا؟ تمہیں موسم سرما یہیں گزارنے کا حکم دیا تھا۔ آقا، میں اپنے مقام اور مرتبے سے فوری طور پر سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں برسوں سے بدل و جان جو فریضہ ادا کرتا آ رہا ہوں
उसे छोड़ना चाहता हूं। खैरियत तो है अमीरुल बहर पाशा। आखिर अचानक क्या जरूरत पेश आ गई सुबुकदोश होने की? अब मुझे मेरी सेहत इजाजत नहीं देती आका। आप जानते हैं उम्र का भी तकाजा है। ये सुनकर अफसोस हुआ बादशाह। अल्लाह की रजा से कोई परेशानी लाहक नहीं होगी। हकीम काफी अरसे से मेरा मुआयना कर रहे हैं, लेकिन मर्ज क्या है अब तक मालूम नहीं हो सका। तुम जा सकती हो रम। इस अचानक फैसले का क्या सबब है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मेरा ख्याल है मूर सल्तनत से मेरा दस्तबरदार होना हर एक के लिए अच्छा होगा। क्यों, ऐसा ही है ना मलिका? ऐसा ही है बिल्कुल। हर किसी के लिए। हर किसी के लिए। लेकिन आका, आपके इसी साजिश में मुलविस होने के बावजूद भी आपके लिए मोहब्बत और इज्जत के जज्बात रखते हैं। अगर उन्होंने कबूल नहीं किया, मैं उन्हें कायल करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर मेरी दुख्तर मुझे मिल गई तो। जिस दिन आपकी बरतरफी कबूल होगी, उस दिन आपकी दुख्तर आपके पास आकर आपको जरूर तसल्ली देगी। ये जाकर महमूद आगा को देना। वो जहां है अभी वहीं पर रहे। खिजर खैरुद्दीन पाशा की सुबुकदोशी का फैसला होने तक वो कतन उस खातून को ना छोड़े। कल सुबह तक इसे पहुंचा दूंगा मलिका। ध्यान रखना, महल के कासिद को मत भेजना, किसी और बाएतमाद शख्स को भेजना। इसके अलावा दरबान महमद आगा से कहो मुनासिब वक्त पर मेरे पास आए, मुझे कुछ बात करनी है। आपका जो हुक्म मलिका। मलिका, दरबान महमद आगा तशरीफ लाए हैं। मलिका। महमद आगा, मैंने सुना है सोकुलू कहा जाता है तुम्हें एंद्रन में। मेरे अहले खाना विशगिरात काजा सीना के करीब सोकलो गांव में रहते हैं, इसकी वजह से मुझे ये कहा जाता है। मतलब कि हर्सी गुवीना के दयार से हो तुम। रुस्तुम पाशा ने बहुत तारीफ की थी तुम्हारी। उनकी गैर मौजूदगी में जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी है। पाशा मोहतरम का लुत्फ करम है, फरीजा अहम है। अगर कामयाब हो गए तो तुम्हारे रास्ते खुल जाएंगे। तुम भी रुस्तुम पाशा की तरह बुलंद मुकाम तक पहुंच जाओगे। मकाम व मनसब अहम नहीं है मलिका, आपकी खुशनुदी हासिल हो मेरे लिए बेशकीमत तोहफा यही है। शेखुल इस्लाम फिनैरी ज़ादे साहब को उनके मनसब से हटाना चाहती हूँ। इस काम को अंजाम देने के दो रास्ते हैं, या तो वो अल्लाह की रहमत में चले जाएं, या फिर सुबुकदोश हो जाएं। तुम्हारे ख्याल में कौन सा रास्ता मुनासिब है? सबसे बेहतर आप जानती हैं मलिका, लेकिन मेरी राय में अगर वो सुबुकदोशी का मुतालबा करें तो वो ज्यादा बेहतर है। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन इसका इम्कान नहीं। हाँ, अगर उन्हें मजबूर कर दिया जाए। हर किसी की कोई पोशीदा कमजोरी जरूर होती है मलिका, खास तौर पर ऐसे मकाम के मालिक इंसानों की। अगर आप इजाजत दें तो तहकीक करूं।
अगर कहीं कोई कमजोरी होगी तो हमें वो मालूम हो जाएगी यकीनन, और उसे आपके सामने ले आऊंगा मैं। और अगर ऐसा ना हो? वरना फिर हम खुद कोई कमजोरी इजाद कर लेंगे। हम तो फिनैरी ज़ादे को बेदाग और बेऐब समझ रहे थे। बिल्कुल। ये कैसे तहरीर कर दिया उन्होंने? खास कैफियत में तहरीर किया होगा। आप तो जानती हैं कि इंसान बुलंद मुकाम पर पहुंचता है तो उसका तकब्बुर भी बहुत बढ़ जाता है, आसपास कुछ दिखाई नहीं देता। हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे सुकूलू। इस मसले पर तुम्हारी मेहनत काबिल तारीफ है। आपकी जरा नवाजी है मलिका। फिनेरी साहब के साथ आपकी मुलाकात का बंदोबस्त करूं, क्या ये चाहती हैं आप? बिल्कुल। उन्हें औकात याद दिलाने का वक्त आ गया है। अल्लाह आपको खुशी अता करे मुफ्ती साहब। मेरी गुजारिश पर आप तशरीफ ले आए। मेरे लिए एजाज है मलिका, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप सुबकदोश हो जाएं मेरे लिए। इसका क्या मतलब है मलिका? ये कैसा मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? मैं कोई मजाक नहीं कर रही आपसे मुफ्ती साहब। मैं सिर्फ यही एक चीज चाहती हूँ, क्योंकि दूसरा कोई और रास्ता नहीं है आपके पास। मोहर आप ही की है ना? बताइए मुझे। ऐसे कई औराक हैं मेरे पास। अब क्या हिकमत थी आखिर? उस अहम तरीन मनसब पर मामूर शख्सियत को आपने किस तरह बरतरफ कर दिया? ये कैसे हो सकता है? अगर ये सब एक काजी या हाकिम करता तो उसे फौरन बरतरफ कर दिया जाता, क्योंकि ये वाज़ेह ज़्यादती है। लेकिन आपको बरतरफ नहीं किया जा सकता। अगर ये वाकया सबको मालूम हो गया तो ना आपका वकार सलामत रहेगा और ना आपका एहतराम बाकी रहेगा। मेरा ख्याल है आप ये सब नहीं चाहेंगे। क्या आप मुझे धमकी दे रही हैं? ऐसा हरगिज नहीं है मुफ्ती साहब। मैं आप पर नवाजिश कर रही हूँ। आपको अपना वकार सलामत रखने का मौका दे रही हूँ। फैसला आपका है। खिलाफ तवक्का कैसे आ गए फिनहरी साहब? खैर तो है? क्या सबब है इस मुलाकात का? मेरे आका, जो कुछ भी आपने मुझसे फरमाया था मैंने उस पर काफी गौर किया। मैं इस मकाम पर आपकी आरज़ू के मुताबिक आया था और आपकी आरज़ू के मुताबिक ही जाना चाहता हूं। उमूर सल्तनत में अना को दखल नहीं देना चाहिए। आप अपना फर्ज कामयाबी से जब तक अदा कर सकते हैं, ये मकाम आपका है। मरहूम पीरी महमद पाशा के मुझ पर बेशुमार एहसानात हैं, उनका मकाम जन्नत हो। आप जानते हैं वो आखिरी मोतबर वजीर आजम थे। वो हमेशा एक बात कहा करते थे, इख्तिदार तुम्हें तर्क कर दे इसका इंतजार कभी मत करना, तुम खुद ही इख्तिदार को तर्क कर देना। इसका क्या मतलब है? सुबुकदोशी चाहते हैं क्या आप? मुनासिब समझे तो बिल्कुल। अल्लाह एक दिन सबको इस इख्तिदार को तर्क करने का हौसला और हिम्मत अता करे। मुनासिब है, सुबुक कर दिया आप जाते थे। सुलेमान, आप जल्दी आ गए। शायद किसी बात पर बरहम हुए हैं। मुफ्ती साहब सुबुकदोशी चाहते थे, मैंने कबूल कर लिया। उनकी जगह अबू सऊद साहब को तैनात कर दिया है। शुक्र है खुदा का। उस मकाम के वही सबसे ज्यादा हकदार हैं।
मैं दरअसल अमीरुल बहर पाशा के लिए फिक्रमंद हूँ। उनकी हालत ठीक नहीं है सुना है। मैं भी फिक्रमंद हूं। हमें उनसे मुलाकात करनी चाहिए सुलेमान। आपसे मिलके उन्हें कुव्वत मिलेगी। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे शहजादे। आपका मुझ पर जिंदगी भर का कर्ज रहेगा, लेकिन काश कि आप यहाँ ना आए होते। मेहरुन्निसा खातून मेरी अमानत में थी अमीरुल बहर पाशा। मैं इन्हें खुद लेकर यहाँ ना आता तो मुझे इत्मीनान नहीं मिलता। बाद अब सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। तुम तारीफ के काबिल हो सुकोलू। तुमने अच्छा काम किया। मलिका, शहजादे मुस्तफा किसी को खबर दिए बगैर पाए तक तशरीफ लाए हैं। शहजादे मुस्तफा कभी वापस न आने वाले रास्ते पर गामसन है और आका गहरे शक में मुब्तला होकर महल वापस आएंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आका के दिल में जो भी शक व शुबहात हैं उन्हें हकीकत का रूप दे दूं। फारिहा, फरमाइए मलिका। ये लो, इसे शहजादे तक पहुंचा दो। ये आपके लिए है शहजादे। खुर्रम सुल्तान ने भेजा है। मेरा तोहफा मुझे वापस लौटाया है। एक दिन आएगा जब तुम इस अकरब की तरह खुद को डंक मार मार कर अपने ही जहर से हलाक हो जाओगे, क्योंकि मैं एक आग की तरह तुम्हें चारों जानिब से घेर लूंगी और वो दिन अब दूर नहीं है। मुस्तफा मजीद कितना अर्सा कयाम करेगा महल में? वो मेरे बिरादर हैं, जब तक चाहे रह सकते हैं। मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। तुम्हारा परेशान होना मुमकिन नहीं वैसे, क्योंकि तुम मेरी आंखों से नहीं देख रही हो। उसकी मासूमियत एक ढोंग है। तुम समझती हो कि सारा कसूर उसके अतराफ की खवातीन का है, तो गलत फहमी है तुम्हारी। मुस्तफा की इजाजत के बगैर कोई भी मुझ पर हमला करने की जुर्रत तक नहीं कर सकता कभी। अगर आप ऐसा सोचती हैं तो बिरादर पर होने वाले हमले का जिम्मेदार कौन था फिर? इसका क्या मतलब? कोई भी मासूम नहीं है वालिदा। जिस तरह आप अपने आप को हक बजाने समझती हैं, वो भी ऐसा ही समझते हैं। तुम गलत फहमी का शिकार हो। मसला मेरा नहीं है। तुम्हारा ब्रादर पाशाओं और यनीचरों के साथ खुफिया मुलाकातें करके आका को तख्त से मासूल करने की साजिश कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं। आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। वो अमीरुल बहर पाशा की दुख्त। उसके दरोग पर तुमने यकीन कर लिया? होश के नाखुन लो तुम मेहरमा। वो तुम्हारे बाबा के मुकाबले एक सरकश की तरह खड़ा है। मुस्तफा ने बहरी बेड़े को यनीचरों के साथ मिला लिया है, शोरिश की तैयारी में मसरूफ है, लेकिन मैं उसकी राह में हायल हो गई। उसे आका के सामने बेनकाब कर दिया मैंने। शहजादे मोहतरम, लश्कर में खुशामदीद, इज्जत अफजाई की आपने। आपको यहाँ देखना हमारे लिए अजीम एजाज है। मैं अगर मुझे तलब किया है तो
जरूर चलूंगा शहजादे। ईफाए अहद करोगे? बिल्कुल करूंगा शहजादे। आप इफाए अहद करेंगे? हाँ, करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप शहजादे मुस्तफा आका की नसीहत को ज़हनशीन करके सिपा से ताल्लुकात में फासला बरतेंगे, यानी चरबी अपनी औकात जान लेंगे, वरना दूसरी सूरत में कोई सलामत नहीं बचेगा। ये नीचे आका की इस अंदाज से गर्दन जदनी पर संगीन सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। किसमें जरूरत है कि सुल्तान सुलेमान के खिलाफ बगावत करे? शहजादी, अदब, सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। तैयारी मुकम्मल है क्या? जी मुकम्मल है शहजादे मोहतरम। जल्लाद आपके हुक्म का मुंतजर है। बिस्मिल्लाह, अल्लाह अल्लाह। मैं तैयार हूं, मेरा सीना तैयार है तलवार के सामने। इस मैदान में बहुत से सरकलम होंगे बिना किसी सबब, बिना जवाब। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से। हमारा कहरो गजब तेजधार तलवार है दुश्मन के लिए। हम सब गुलाम हैं शहजादे मोहतरम मुस्तफा के लिए। मेरे जिस्म जा, ज़हनो दिल, ख्यालो गुमा, सब कुछ दिन मोहम्मदी पर फिदा है। हमारे रूहानी पेशवा, आली मकान, पीरो मुर्शिद, हमारे सुल्तान, शहंशाहों के शहंशाह, इन पर हर शे फिदा हो। ऐ अल्लाह,
रुस्तम पाशा का एहतराम न करने की वजह से उसका सर कलम किया। आका के हुक्म पर मरने वाले गद्दार के लिए इस महल में आखिर कब से दुआ मांगी जाने लगी शहजादी? वो गद्दार हरगिज नहीं था हुरम। रुस्तम पाशा का एहतराम न करने की वजह से उसका सर कलम किया गया। अवाम यही ख्यालात रखते हैं। क्या आपके लिए यही काफी नहीं कि रुस्तम वजीर आजम है, इसके अलावा मेरा खाविंद भी? अगर इस तरह सोचा जाए तो हर किसी का सर कलम हो जाएगा मेहरमा। तुम्हारे खाविंद को तुम्हारी वालिदा के सिवा कोई पसंद नहीं करता, यहां तक कि तुम भी नहीं। मेहरमा, फातिमा सुल्तान को तुम क्या कुछ बता चुकी हो? क्या बता सकती हूँ वालिदा, ये कोई राज नहीं। हर कोई जानता है कि मेरी शादी किस तरह हुई थी। मेहरमा, रुस्तम। मलिका, माजरत, आपकी मौजूदगी का इल्म नहीं था। हम काफी देर से तुम्हारी राह देख रहे थे। मैं भी हर वक्त आप सबको याद करता था। मैं महल वापस जा रही हूँ। रुस्तम, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पहले आका से मिलने की जरूरत थी? बिल्कुल थी। शहजादी और अपनी दुख्तर से मिलकर फौरन उनके पास जाऊंगा मलिका। आला, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। उसकी रवानगी की तैयारियां मुकम्मल है ना? जी मुकम्मल है। खातून की मां बनने में कितना वक्त रह गया है? तबीबा ने 2 महीने का बताया है। मलिका, अगर शहजादा पैदा हुआ तो हम क्या करेंगे? वालिदा। जहांगीर, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं कुछ देर में आती हूँ। शहजादे, कब वापस जा रहे हैं आप अपनी रियासत में? माहिदौरा सुल्तान परेशान हो रही होंगी। आका मेरा यहाँ मजीद कयाम चाहते हैं। मैं भी ये बेशकीमत वक्त बिरादर हमशीरा के साथ गुजार रहा हूँ। हर सांस जो आप ले रहे हैं बेशकीमत है, ये सच है। अल्लाह मुहाफिज है। अली आका की जगह आप भी हो सकते थे। लगता है कि आपका ख्वाब चकनाचूर हो गया। ये काम इतना आसान नहीं, इतना तो तजुर्बा मैं भी रखती हूँ। आइंदा जो होगा वो अहम है। शक एक भेड़िए की तरह होता है, एक बार हावी हो जाए तो इंसान के अंदर ही अंदर पलता रहता है, और जब फिर मसला वफादारी का हो तो इब्राहिम पाशा की मौत तो याद ही होगी आपको। कुछ अरसा पहले मेरी तरफ फेंका गया तीर एक मासूम खातून और उसके शिकम में मेरी औलाद की मौत का सबब बना। क्या वो जो जमीन और आसमान में ना समाये, क्या वो वफादारी है आपकी? आप चाहे कुछ भी कर लें, कभी भी अपने अंजाम से फरार नहीं हो सकती। एक दिन आएगा आपकी तकदीर सिर्फ मेरी जुम्बिश लब की मोहताज होगी।